Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to start a new topic, diversity in living organism. We will do first part of this lesson. Let's start. On our earth there are present about 10 crore different types of plants and animals. Out of these, about 17 lakhs different types of species have been classified. It is very difficult to remember all the details of all living organisms. Hence, the need for classification of organisms. And the organisms are classified on the basis of similarities and dissimilarities and interrelationship among them. The first question arises, why do we classify organisms? The size, the structure and behavior of the organism is different, we know. Therefore, to make easy, we need to classify the organisms. Various kind of animals and plants occur on earth or world. For example, on one hand in the world we have microscopic bacteria of a few micrometer in size. Very microorganisms, microscopic organism, bacteria, virus are very minute creature on the land. On the other hand, we have long, wide, large organism like blue whale, approximate the size of 30 meters. While redwood trees of size 100 meter are found in California and USA, their age and structure are also different. All living organisms, if we talk about their age and their structure, these are totally different from each other. Some organisms have simple structure while others have complex. Therefore, to make easy the study of various forms of life, they are classified on the basis of similarities and dissimilarities. Next question. Give 3 examples of the range of variations that you see in life forms around you. अभी हमने यहाँ पे भी पीछे भी किया हुआ है. वेरिएशंस तो कोई छोटे साइज़ के मिल रहे हैं हमें, कोई बड़े साइज़ के मिल रहे हैं, है ना. कोई छोटी एज के मिल रहे हैं, कोई बड़ी एज के मिल रहे हैं. किसी की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, किसी की जो है कॉम्प्लेक्स है. तो यही बातें यहाँ पे भी आएंगी. देखो, on one hand in the world we have microorganisms like bacteria which can be viewed under microscope. On the other hand we have 30 meter long blue whale. Second, 100 meter long redwood trees are found in California, whereas lichen are visible merely like small spots. Tortoise remains alive for 300 years. Lifespan of tortoise is 300 years, while insects like mosquito have a lifespan of only a few days. कुछ दिनों का ही होता है. Let's start. Let us study about the organisms or classification of organisms through this table. Organisms. All organisms are divided into 2 main groups, prokaryotes and eukaryotes.
Prokaryotes are unicellular organisms and eukaryotes are unicellular as well as multicellular. We will study Monera in prokaryotes organism and we will study Protista in eukaryotic unicellular organisms. Okay, and multicellular organisms are eukaryotic multicellular organisms we will study by dividing into two subclasses with first is with cell wall and second is without cell wall, with cell wall and without cell wall. तो हम पहले इसको पढ़ते हैं मोनेरा को, अब ये बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। मोनेरा को पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स और ये भी बता ही देती चलो, है ना। प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्टा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म and multicellular eukaryotic organisms. We will study about multicellular eukaryotic organisms by dividing into two sub grouping. First is with cell wall, the multicellular organism with cell wall, and second without cell wall. The eukaryotic multicellular organism without cell wall is known as animals, and the eukaryotic multicellular organism with cell wall are known as plants. But these are also differ from divided into two groups. The organism multicellular eukaryotic organism having cell wall but do not perform photosynthesis are known as fungi, and plants which are able to perform photosynthesis, okay, with cell wall, having cell wall, multicellular eukaryotic organism we will study in these plants. Let's study about Monera, and first Monera we will study about prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes, a microscopic single cell organism which has neither a distinct nucleus with a membrane or nor other specialized organ. एक ऐसा बहुत छोटा सा सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई न्यूक्लियस ना हो, जिसमें कोई न्यूक्लियस मीन्स जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन में से कवर्ड ना हो, न्यूक्लियस में ना हो, और ना ही कोई दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हों, तो उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज ए एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स। साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरियम सेल, दिस इज ए साइनोबैक्टीरिया, both are prokaryote cell. And we will study Monera in prokaryotes. We are here, Monera. We are studying prokaryotes, and in prokaryotes we will study the features of Monera group. Okay, let's start Monera. These organisms do not have a definite nucleus or organelles, nor do any of them show multicellular body design. On the other hand, they show diversity based on many other characteristics. Some of them have cell wall while some do not. वो ऑर्गेनिज्म जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है, और जो जिनमें मल्टी सेलुलर बॉडी भी नहीं है, जिनमें सेल वॉल भी जो है वो कुछ में है और कुछ में नहीं है, और जो ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वॉल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी डिज़ाइन.
here from having or not having a cell wall in multicellular organism. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है तो उसको हम प्लांट में कंसीडर करेंगे, है ना, और कुछ में जो जिनमें नहीं होती तो उसको सेल वॉल नहीं होती तो उसको हम एनिमल्स कंसीडर करेंगे। पर मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ के पास तो प्लांट सेल वॉल है और कुछ के पास सेल वॉल नहीं है। तो क्या मोनेरा के आधे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स होंगे और आधे जो हैं वो एनिमल्स होंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो इसको ये एक छोटा ग्रुप, इसीलिए इसको अलग ये बनाया गया कि आधे जो हैं वो प्लांट की तरह बिहेव करेंगे और आधे जो हैं वो एनिमल्स की तरह होंगे। नेक्स्ट आगे इसमें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक है, वो अपना फूड आप बनाते हैं और उनमें क्लोरोफिल भी होगा, एंड फ्यू आर और गेटिंग इट फ्रॉम द environment or they are heterotrophic. This group include bacteria, blue-green algae, cyanobacteria and mycoplasma are few example of Monera group. Let's show the pic. Bacteria, Anabaenia. Okay. Eukaryotes, the organism consisting of a cell or cells, एक सेल या ज़्यादा सेल्स होंगे इसमें, in which the genetic material is DNA in the form of chromosomes contained within a distinct nucleus. एक खास न्यूक्लियस इसमें हमें दिखाई देगी। यूकैरियोट्स, नोट करने वाली बात है, यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अदर देन द यूबैक्टीरिया एंड आर्किया। इनके अलावा सभी जो हैं वो क्या है? यूकैरियोट्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टडी करें, इस जगह पे आए हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोट्स थे। ये हमने मोनेरा इसको स्टडी किया। मोनेरा जो है वो कुछ मोनेरा में सेल वॉल है, कुछ में नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस तो है ही नहीं है, न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस तो है ही नहीं है इनमें। ठीक है, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट था, कुछ जो थे ऑटोट्रॉफिक थे और कुछ हेटेरोट्रॉफिक थे। तो ये मोनेरा हमने स्टडी किया। अब हम यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं। तो यूकैरियोट्स जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें यूकैरियोट्स अभी हमने पढ़ा, इसमें क्लियर न्यूक्लियस हमें मिल रही है, एक तो दिखाई दे रही है, बाकी भी सेल ऑर्गेनल्स हमें दिखाई देंगे। तो अब मैं एक पिक जो है उसके द्वारा क्लियर करवाती हूँ कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो और प्रोकैरियोटिक सेल जो है इनमें क्या डिफरेंस है। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस हमें क्लियर दिखाई देती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में डीएनए मटेरियल तो होता है पर न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल में इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा है। इसमें बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो यूकैरियोटिक में है, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हैं, ये सब कुछ हमें क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसमें ऐसा क्लियर दिखाई नहीं देता है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आपने डायग्राम नहीं बनाने हैं, जस्ट समझने के लिए मैंने डायग्राम लगाए हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी मैं आपको बता दूँ। प्रोटिस्टा हम यहाँ पे आ गए। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल अभी मैंने पिक दिखाई इसमें आपको। तो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। अब हम ये पढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोटिस्टा। Now we will study about a unicellular eukaryotic organism in protista group. Okay,
we will study about Protista. Protista is a unicellular organisms, eukaryotic organisms. This group include many kinds of unicellular eukaryotic organisms. Some of these organisms are appendages. इसमें किसी के पास तो चलने के लिए appendages है. कैसे appendages? ठीक है, such as hair like cilia in paramecium. अब मैं पिक दिखाऊंगी आप. whip like flagella in Euglena for moving around. Okay, their mode of nutrition can be autotrophic. They have chlorophyll, and Euglena is a autotrophic unicellular eukaryotic organism. Euglena is a autotrophic unicellular eukaryotic organism. Algae is also eukaryotic organism, unicellular diatom, and some protozoan. I will see. We are seeing the pic of paramecium. These are cilia for locomotion of paramecium, and paramecium, there is a clear nucleus and food vacuole and cilia. We no need water vacuole. Paramecium is found in fresh water, and this pic is amoeba. We are also seeing nucleus here, mitochondria, endoplasmic reticulum, and food vacuoles are, and contractile vacuole, and these are locomotory appendages. We know pseudopodia, and this pic is Euglena, and Euglena is a unicellular eukaryotic organism, and it has chloroplast, so it can prepare its own food by photosynthesis, and flagella is present for locomotion, and one long flagellum. Okay, and contractile vacuole is also present here. And now we will study multicellular organism with cell wall and do not perform photosynthesis. We are here. I am showing you with the table. Now we are studying multicellular organism. हमने ये भी पढ़ लिया, ये ग्रुप पढ़ लिया, ये वाला भी हमने पढ़ लिया. अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं. इसमें हम दो पढ़ेंगे, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल. ये पढ़ रहे हैं. विद सेल वॉल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. वी विल स्टडी इन दिस फंजाई without photosynthesis. ठीक है, the which do not perform photosynthesis without chloroplast. Okay, we will study this. The fungi are the eukaryotic multicellular organism with cell wall and do not perform photosynthesis. Okay. Fungus, fungi. There are heterotrophic eukaryotic organisms. They use decaying organic material as food. क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो ये अपना फूड नहीं सिंथेसिस कर सकते, नहीं बना सकते, तो इनको फूड के लिए कहाँ पे डिपेंड करना पड़ता है? दे आर डिपेंडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर न्यूट्रिशन, देयरफॉर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स.
आपने देखा होगा घरों में कुछ ब्रेड पड़ी हो, कोई पुरानी सब्जी पड़ी हो, तो उस पर, या अचार देखा, उस पर भी आपको देखा ना उल्ली आ जाती है, फंगस आ जाती है। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी to become multicellular organism at certain stages in their lives। इनमें से वैसे तो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, पर अपनी स्टेजेस में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये मल्टी सेलुलर भी बन जाते हैं। इनमें कईयों में कैपेसिटी होती है। दे हैव सेल वॉल तो है इनमें, ठीक है, मेड ऑफ ए टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कार्ड काइटिन। काइटिन की बनी हुई इसकी एक सेल वॉल भी मिलती है। एग्जाम्पल जो है यीस्ट, मशरूम्स, हम इसकी सब्जी खाते हैं मशरूम की, तो ये पिक में दिखाया हुआ है, ये मशरूम है, ये एस्परजिलस पेंसिलिनियम, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है फंगस के। अब सम फंगल स्पीसीज लाइव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत सारी जो फंगल स्पीसीज़ हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया जो है वो एल्गी के साथ, ठीक है, एक म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहती है। तो इस ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो प्रजातियां जो हैं, जो दो स्पीसीज जो हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती हैं, उसको सिम्बायोटिक कहते हैं। तो क्या होता है कि एल्गी जो है, ठीक है, वो अपना फूड बनाती है तो इसको फंगस को मिल जाता है। तो फंगस जो है वो एल्गी के लिए जो है उपजाऊ मिट्टी तैयार करके देती है। सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। दी सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म आर कॉल्ड लाइकेन, इसको लाइकेन भी कहते हैं। वी हैव ऑल सीन लाइकेन एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है, ट्रीज़ की छाल में भी हम इसको देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा भी हमने स्टडी कर लिया है, मल्टी सेलुलर में हमने ये स्टडी किया है। फंगस, फंजाई do not perform photosynthesis but having cell wall, these are multicellular eukaryotic organisms. Now we will study the plants, plantae. These are organisms which can able to perform photosynthesis. I can say they are autotrophic, having cell wall, multicellular eukaryotic organisms. Let's start. Plants. Multicellular eukaryotic organisms with cell wall able to perform photosynthesis are known as plant or plantae. The first level of classification among plants depend on whether the plant body has well differentiated distinct components. The next level of classification is based on whether the differentiated plant body has special tissue for the transport of water and other substances within it. हम देखते हैं कि प्लांट की बॉडी जो होती है ना वो मेनली 3 पार्ट में तो डिवाइडेड होती है। एक तो रूट, स्टेम एंड लीव्स वाला पार्ट, ठीक है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड इसमें डिवाइडेड होती है। पर जो शुरुआत के लेवल में हम पढ़ेंगे इसको तो कुछ बॉडी, प्लांट बॉडी हमें ऐसी भी मिलेगी, प्लांट तो होंगे पर उनमें बॉडी जो है वो स्टेम, रूट एंड लीव्स में डिवाइडेड नहीं होएगी, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, थैलोफाइटा में पढ़ेंगे। ये एक लंबा ग्रुप है, इसको हम अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। और उसके बाद कुछ सभी प्लांट्स में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, ठीक है, फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर को लेके जाता है लीव्स तक, और फ्लोएम क्या करता है, लीव्स जो फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान उस फूड को सारे प्लांट में लेके आता है वापस। तो वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं कईयों में
कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, आप स्टडी करोगे अभी। फर्दर क्लासिफिकेशन, लुक एट द एबिलिटी टू बियर सीड्स। कुछ में सीड्स होते हैं कईयों में सीड जो होते हैं सीधा पेड़ पे लगे होते हैं, ऐसे ट्री पे लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं बियर सीड कहते हैं। और कुछ में सीड्स जो होती हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सभी स्टडी हम करेंगे। तो कैसा होगा अगला हमारा टॉपिक, ये तो हमने पढ़ लिया था, इतना तो है ना, ये पीछे वाला। अब हम यहाँ पे आ गए, ये वाला टॉपिक प्लांट्स हमें पढ़ना है ना। प्लांट्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। वी विल स्टडी about planting group into dividing into 2 group. Do not have differentiate plant body. जिसकी प्लांट बॉडी स्टेम, रूट और लीव्स में डिवाइडेड ना हो उनको हम थैलोफाइटा कहेंगे। और बाकी प्लांट्स जिनकी बॉडी जो होती है स्टेम, रूट, लीव में डिवाइडेड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वो 2 प्रकार के हम स्टडी करेंगे। एक तो वो जिनमें फिर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे, विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, we will study bryophyta in this group, and with the vascular tissue we will study Teldium. Teldium is a plant which do not produce seed. इसमें सीड नहीं होते हैं पर वेस्कुलर टिश्यू है, इसमें बॉडी भी स्टेम, रूट और लीव्स में डिवाइडेड है। तो फिर ये कैसे उगते हैं ये भी मैं इसको स्टडी कराऊंगी तब मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद ऐसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं यहाँ से शुरू करूँगी। ये टॉपिक तो अब मैंने शुरू किया ना, यहाँ से शुरू करके ये वाला सारा मैं कराऊँगी आपको। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट इट, सो कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।